ایک ملک کی طرف سے یہ تجویز سامنے آ گئی ہے کہ ہمیں مکہ معاہدے کا رد عمل دینا چاہیے اور اس میں بھارت، افغانستان، قطر اور تاجکستان کو شامل کر کے ایک نیا علاقائی اتحاد بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کس ملک کی طرف سے تجویز آئی ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی، تجارتی آبی گزرگاہیں کمپرمائز اور وہاں پر کشیدہ صورتحال ہوتی ہوئی نظر آئی، اس کے متبادل میں ایک پلان بی بنایا جا رہا ہے اور اس پلان بی کی جگہ کہاں پر ہو سکتی ہے؟ ممکنہ طور پر پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب، کویت، قطر اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کس فیصلے کے قریب پہنچ چکا ہے؟ یہ دو بڑی خبریں ہیں جن پر آج کے اس ولاگ پر بات کرنی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے اس ولاگ کا۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 10 اگست 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ کے سامنے ہے کہ مکہ معاہدہ جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہوا، بقول ترکی کے حکام کے کہ اس کے اوپر جو پیش رفت ہے تقریباً 2 سال سے جاری ساری تھی، اس کے خد و خال، اس کے متن، اس کی حدود کا تعین کیا جا رہا تھا اور بالآخر اب یہ جو بات ہے یہ فائنل ہو چکی ہے اور اس کو کمپائل کیا گیا اور پھر اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی گئی۔ ترکی کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ایران سمیت کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سعودی عرب کی یا تینوں ممالک کی جو سلامتی ہے اس کے اوپر کیا گیا، یعنی کہ ان کی باتوں سے یا اس ایگریمنٹ کے اعلامیے کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیسکلی یہ ہر اس ملک کے ساتھ اگر کشیدگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایگریمنٹ جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو ہو سکتا ہے جب کسی بھی ملک کو، ان تینوں رکن ممالک میں سے کسی ایک کو لگا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ان پر زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اب ان کی زمین جو ہے، ان کا جغرافیہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو اس کے بعد یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ مکمل ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی وہ ڈیفینیشن تھی، چیزیں تھیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ 3 ممالک، ایک پر حملہ، دوسرے پر حملہ یا تیسرے پر حملہ شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر بعض ممالک کا رد عمل بھی سامنے آیا، ایران کا رد عمل بھی سامنے آیا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک ہیں، آہستہ آہستہ ان کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب افغان ٹائمز سے منسوب ایک رپورٹ کے اندر بات کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر نام تو نہیں لکھا گیا کہ وہ منسٹر کون ہے، لیکن بعض ذرائع سے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مکہ معاہدے کا رد عمل دینا چاہیے اور کیوں نہیں ہمیں بھارت کو ساتھ ملا کر، افغانستان ہو گیا، قطر ہو گیا اور تاجکستان ہو گیا، ہمیں ان ممالک کو ساتھ ملا کر ایک دفاعی اسی نوعیت کے ایک ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہیے جو کہ علاقائی سطح پر ہوگا، جو کہ سیکیورٹی کو مضبوط بھی کرے گا۔ اب یہ جو بات ہے افغانستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کی گئی ہے، جو گو کہ میں نے کہا کہ افغان ٹائمز کے اندر اس منسٹر کا نام تو نہیں لکھا گیا، لیکن جو دیگر بعض ذرائع ہیں ان کے حوالے سے انہی کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ اس پوری دنیا کو پتہ ہے، سبھی کو پتہ ہے، خطے کے ممالک کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پاکستان انڈیا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور اس قسم کا بیان دینا اور ایک ایسے وقت میں دینا کہ جب پاکستان نے، ہم نے کل ہی اس کے پر ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں پاکستان اس بات کے پر غور کر رہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو اوپن کریں تاکہ وہاں کی جو تاجک کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے اور پاکستان کی تاجک کمیونٹی ہے یہ بھی کنیکٹ ہو سکے۔ تو پاکستان اپنے تمام تر خدشات کے باوجود اس بات کے پر غور کر رہا ہے کہ وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے، تجارت نقطہ نظر سے وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر اوپن کرے، اور دوسری سائڈ پر افغان حکام کی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں اس معاہدے کے رد عمل کے طور پر ہمیں قطر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے افغان طالبان کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات ہیں اور اس حوالے سے کس انداز میں الجزیرہ رپورٹنگ بھی کرتا ہے، پاکستان کے بھی اس کے اوپر کنسرن رہے، تو یہ ممالک جو ہیں یہ بڑا چن چن کے انتخاب ان کا کیا گیا اور یہ تجویز جو ہے وہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ان کی طرف سے دی گئی۔ اب یہاں پر آ جائیے، ہم سبھی ممالک کے کردار پر بات تو نہیں کرتے یا پھر ان کی خارجہ پالیسی پر بات تو نہیں کرتے، لیکن بھارت کے کردار کے پر ہم بات کر لیتے ہیں، یا بھارت کی خارجہ پالیسی پر۔ دیکھیے، بھارت کی کولڈ وار کے دنوں میں بھی جو خارجہ پالیسی کی ایک بنیادی لائن جو ڈرا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کسی کا بھی اتحادی نہیں بننا، اور ابھی جو افغانستان کے اندر موجودہ جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے اسے تو افغانستان نے اعلانیہ طور پر ایکسیپٹ بھی نہیں کیا ہے، ماں سوائے روس کی طرف سے کیا گیا، اور روس کے ساتھ بھی ان کا دفاعی نوعیت کا لیکن تکنیکی نوعیت کا بہرحال ایک ایگریمنٹ موجود ہے۔ اب بھارت کا افغانستان کے ساتھ اعلانیہ طور پر کوئی ایسا ایگریمنٹ کر سکتا ہے؟ ہم پہلے تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں، بھارت کی ہمیشہ یہ پالیسی نہیں ہوا کرتی، نہ ہی وہ امریکہ کے کیمپ میں پوری طرح جاتا ہے، نہ ہی وہ سوویت یونین کے کیمپ میں پوری طرح جاتا ہے، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا ایک توازن بنا کے رکھے اور دونوں کے ساتھ بیک وقت جو تعلقات ہیں وہ اپنے
قائم करके रख सके। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार भारत के अंदर आई है तो भारत की जो बुनियादी खर्चा पॉलिसीज की जो डीएनए लाइन समझी जाती थी, बुनियाद समझी जाती थी, उन्हें मोदी सरकार तब्दील करती हुई नजर आती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम हमेशा पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये गिला भी किया करते थे अपने फैसला साजों के सामने भी कि आपके ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ जो हैं वो और नौइयत के हैं, लेकिन भारत के मुस्लिम अरब ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो एक मुनफरिद किस्म के हैं। वहाँ पर जिस तरह से भारत के लोगों को एंटरटेन किया जाता है, वो जिस तरह से भारत के अंदर अपनी सरमायाकारी करते हैं, भारत के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो वैसे पाकिस्तान को अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में की हैं। अब वो इरादी तौर पर की हैं, गैर इरादी तौर पर की हैं, बहरहाल ये तो अलग डिबेट है। और ये बात मैं खुद से भी नहीं कर रहा, खुद भारत के अंदर जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं वो ये बात मोदी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि भाई आपने इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था मुस्लिम अरब कंट्रीज़ के अंदर भारत का, वो आपने सारा का सारा पाकिस्तान की झोली में डाल दिया है। खुद ये जो हालिया दिनों में देशभक्त नामी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से जो व्लॉग अपलोड हुआ, जो देखते देखते मिलियंस में भी चला गया, वो भी अगर आप व्लॉग सुनते हैं तो उसके अंदर भारत की पॉलिसी के ऊपर तनकीद की गई है, बीजेपी सरकार के ऊपर तनकीद की गई है कि भाई आपने किस किस्म की पॉलिसी की कि आपने सारा का सारा जो मामला है ये पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। और हमारे हिस्से में कौन से मुल्क आ रहे हैं, हमारे हिस्से में यानी कि भारत के हिस्से में कौन से मुल्क आ रहे हैं, अफगानिस्तान जिसे दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है, और इसराइल जिसका वैसे ही तनाज़ा सभी के साथ रहता है, जिसकी हैसियत क्या है वो पूरी दुनिया को पता है। तो ये दो मुल्क हमें मिले हैं, ये हमारी खारजा पॉलिसी रह चुकी है। और अगर भारत इसके तमाम तर बावजूद अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है तो जाहिर है भारत के बाहर से छोड़िए, भारत के अंदर से बहुत आवाज़ें स्ट्रॉन्ग किस्म की निकल कर सामने आएंगी। और ये खुद भारत की जो खारजा पॉलिसी है या सिफारती सतह के ऊपर जो उसके ताल्लुकात हैं वो उसको खुद कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो खुद बता रहे हैं कि वो कितनी निचली सतह के ऊपर जो भारत की खारजा पॉलिसी है वो रह चुकी है। तो बहरहाल ये देखना ये है कि भारत के लिए कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एलानिया तौर पर ना हो, ऐलान इसका ना किया जाए, लेकिन खामोशी के साथ किया जा सकता है। और बाज़ ओपन इंटरनेट सोर्स अकाउंट से भी दावा कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात को भी ये एग्रीमेंट कुछ अच्छा नहीं लगा। और बाज़ ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें भी सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपना कुछ इत्तेहाद बनाकर इसका रद्द-ए-अमल ज़रूर दे सकता है। अब वो मुमकिन तौर पर कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी बातें चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन मुसद्दक़ा नहीं है। बाज़ ज़राए से अलबत्ता आप ओपन इंटरनेट सोर्स अकाउंट से ये चीज़ें चल रही हैं। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि एलानिया तौर के ऊपर ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन ऐसे एग्रीमेंट मख्फी तौर पर हो सकते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान को उसी की सरहदों के अंदर इतना एंगेज कर दें कि वो यहाँ से बाहर निकलकर ये जो एग्रीमेंट्स उसने किए हैं इन्हें वो पूरा वक्त ना दे सके और अपने पूरे जो वसाइल हैं, ये ज़्यादातर जो वसाइल हैं वो अपने वहाँ पर ना लगा सकें। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर कि दूसरी खबर क्या है। तो इसके हवाले से हमने पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान अपने कुवैत के साथ ताल्लुकात को अच्छे कर रहा है, पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को अच्छे कर रहा है, पाकिस्तान ओमान के साथ भी अपने ताल्लुकात को अच्छा कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात उस नौइयत के नहीं थे, ख़राब हुए। तो उसमें जो मैन पावर थी हमारी UAE के अंदर, वो हम इन ममालिक के अंदर शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। अब इन्हीं ममालिक के साथ हमारी एक और डील भी चल रही थी और उसके ऊपर अब ये मामला हुआ कि जो कशीदगी हुई है मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान अमेरिका जंग के दौरान, इसमें जो बाबुल मंदब के अंदर सूरत हाल पैदा हुई, आबना हुर्मुज़ के अंदर सूरत हाल पैदा हुई। अब इन ममालिक की जो सप्लाई चेन है अरब ममालिक की मईशत की, वो ज़ाहिर है तेल और गैस बेच कर ही होती है, और जब ये रस्से बंद हो जाएंगे तो फिर इनकी मईशत के ऊपर अच्छा खासा एक असर आएगा। तो इसीलिए ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें अपने कुछ जो एसेट्स हैं या तिजारत के नुक्ते नज़र से हमें ये किसी और मुल्क के अंदर भी रखना है, ताकि अगर कल को दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो तो हम यहाँ से यानी किसी और मुल्क से हम अपना जो सामान है वो अपने क्लाइंट को दे सकें। तेल और गैस की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है ये जारी सारी रहे। अब वो प्लान भी जगह कौन सी हो सकती है, उस हवाले से पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ऑयल स्टोरेज बन सकती है, गैस के हवाले से इक़दामात हो सकते हैं ताकि पाकिस्तान भी उनको इस्तेमाल कर सके और बवक्त ज़रूरत जो है यहीं से ये ममालिक सऊदी अरब, कुवैत और कतर जो है वो अपने दीगर जो एशिया के क्लाइंट हैं उन्हें भी सेल कर सकें। ये पूरी खबर क्या है ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान को सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ मुजव्वज़ा बॉन्डेड स्टोरेज स्कीम के तहत हंगामी पेट्रोलियम ज़खायर तक रसाई हासिल हो सकती है। ये तजवीज़ पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई है। इसका मकसद आलमी सप्लाई चेन में तातुल जैसे आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक बहरान के दौरान मुल्क को इजाफी बफर फराहम करना है। पस मंज़र और ज़रूरत क्या है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई बाज़ाब्ता तस्वीराती पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है। मौजूदा ज़खायर ज़्यादातर कमर्शल हैं,
मुल्क अपनी तेल और LNG दरामदात का बड़ा हिस्सा अब नए हुरमुज़ से गुजरते रास्तों पर इन्हिसार करता है। हालिया इलाकाई कशीदगी ने इस कमजोरी को नुमायां किया, जिसके बाद हुकूमत ने तवानाई सिक्योरिटी के लिए जामे इक़दामात शुरू कर दिए हैं। गैर मुल्की सप्लायर्स खासतौर पर सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने अपने खर्च पर पाकिस्तान में कस्टम्स बॉन्डेड तनसीबात में पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करेंगे। इन मसनूआत में शामिल हैं खाम तेल होगा, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट होगा, हाई स्पीड डीजल होगा, जेट फ्यूल होगा, फ्यूल ऑयल होगा, LPG होगा, LNG। और इसके अहम असूल क्या होंगे कि ड्यूटीज़ और टैक्सेस, लिवीज या दीगर चार्जेस सिर्फ उस वक्त लागू होंगे जब मसनूआत को मकामी इस्तेमाल के लिए डी बॉन्डेड क्लियर किया जाएगा। जब तक सामान बॉन्डेड स्टेटस में रहेगा वो टैक्स न्यूट्रल रहेगा। सप्लायर्स इन ज़खायर को बैन अल-अक़वामी मार्केट में दोबारा बरामद भी कर सकेंगे। पाकिस्तान को हंगामी सूरत हाल में इन ज़खायर से ख़रीदारी का हक हासिल होगा, वो कीमत अदा करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा। ये स्कीम 2023 की पुरानी बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी में तरमीम के बाद तैयार की गई है, क्योंकि पुरानी पॉलिसी के तहत कोई गैर मुल्की सप्लायर सहूलत कायम नहीं कर सकता था। नई पॉलिसी गाइडलाइंस तकरीबन 168 सफ़ात तैयार की गई है, जिनमें टैक्स न्यूट्रलिटी, तिजारत, लचक और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल और अगले मराहिल क्या होंगे कि पेट्रोलियम डिवीज़न ने यह तजवीज़ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेज दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यह स्कीम तैयार की गई थी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने 9 अगस्त 2026 को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी अरामको और दीगर बड़ी कंपनीज की मदद से ये कमर्शियल बॉन्डेड स्कीम तैयार की गई है। अगले हफ्ते ECC में फैसले की इसकी तवक्को है। और वज़ीर ने सऊदी अरब, कुवैत और कतर की हुकूमतों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये ममालिक अपने खर्च पर पाकिस्तान की महफूज सरजमीन पर तेल ज़ख़ीरा करेंगे और यहाँ से दुनिया भर को सप्लाई भी कर सकेंगे। मुजव्वज़ा मकामात कौन से हो सकते हैं? इसमें कराची, KPT, किमाड़ी की बात की गई है, पोर्ट कासिम, गवादर हब और महमूद कोट, माची यानी कि शेखपुरा वाली साइड पर। और इसके अंदर हुकूमत ने अलग से अपने तस्वीराती रिजर्व बनाने का भी बड़ा मंसूबा बनाया है। एक माह के खाम तेल के ज़खायर के लिए तकरीबन $500 मिलियन और ज़ेर ज़मीन स्टोरेज सिस्टम के लिए मज़ीद $300 से $400 मिलियन दरकार हैं। बाद में इस पर गौर भी किया जाएगा। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो पाकिस्तान इसके ऊपर भी काम कर रहा है और ये ममालिक खुद इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई बाबुल मंदब बंद हो जाए, अपने हुरमुज़ बंद हो जाए तो हम तेल और गैस फरोख्त करके अपनी मईशत को कैसे सहारा करें। तो उसके लिए प्लान भी एक जगह पाकिस्तान हो सकती है। पाकिस्तान के ताल्लुकात बैक वक्त चाइना के साथ अच्छे, अमेरिका के साथ अच्छे, ईरान के साथ अच्छे, अरब ममालिक के साथ अच्छे। तो पाकिस्तान के लगे हुए झंडे वाले जहाज़ों को कोई कुछ कह नहीं सकेगा। तो इसलिए हम इसी के ज़रिए आलमी तिजारत भी कर सकेंगे। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो हमने आपके सामने रखी हैं। और ट्रेड के अलावा एक और वजह यह है कि ऑयल रिजर्व यहाँ पर रहेंगे तो इनके ऊपर हमला करना भी इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ होगा और पाकिस्तान फरीक नहीं होगा किसी भी जंग के दौरान। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब